Hello dear student, I am Varun Kumar Rishad from LPM school. In this video, we will start a new chapter which is acids, bases and salts. In previous chapter, chapter 1, the chemical reaction and equation, we have learned about the chemical reactions, types of chemical reactions, how to balance the chemical reactions and oxidation, reduction and simultaneously oxidation and reduction, that is redox process, and also oxidation process in our daily life like corrosion, rigidity of food, and how we prevent from corrosion and rigidity of food. After all that, dear student, we have also done about the summary and also discuss about the NCERT exercises, and today we will discuss about the new chapter which is acids, bases and salt. Now start the acid, bases and salt. Student, you are familiar from your lower classes, you familiar the acid, bases and salt. In your lower classes you are learn already the acid are those substances they are sour in taste, and bases are those substances they are bitter in taste. And also you are also learn about the acid are those substances which turns blue litmus into red, and bases are those substances which turn red litmus into blue. And these all indicators are identify the given solution is acid or bases. Now in your class 10th standard you will also learn the one more extra types of indicators and another olfactory indicators also. And also you learn the chemical property of acids, the chemical properties of bases, and what will happen when the acid and base react to each other. Now the pH value in our daily life and pH value of different type of acid, different type of bases, what is the neutral according to the pH, and more about salt, what is the crystallization what is the crystallization process and all that. We will learn in this chapter of all these aspects. So be concentrate and we will discuss all the aspects of this chapter, chapter 2, which is acids, bases and salt. Now start from the chapter from acids, how to identify acid, bases by the different type of indicators. Now, so you will already know about acids. तो एसिड्स जो होते हैं वो एसिड्स रिलीज हाइड्रोजन आयन आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर. बेसिस रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर. But in case of hydrogen ion, after releasing in water, after dissolve, जब हम वाटर में एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है. बट ये हाइड्रोजन आयन अनस्टेबल होता है. अनस्टेबल अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इट रिएक्ट विथ वाटर H2. तो क्या हो जाएगा? H2H plus H2O will become H3O plus. इसका जो प्लस है वो इसमें शिफ्ट कर जाता है, किसमें? ऑक्सीजन पे. तो ये बनाता है स्टेबल हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन बनाता है. It is an identification in a very simple way, which is acid or bases. तो बेस को जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो हाइड्रोक्साइड आयन
देता है जो कि स्टेबल होता है। हाइड्रोजन आयन की तरह अनस्टेबल नहीं होता, ये स्टेबल होता है। बट एक और टर्म आता है, द बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर, दैट इज कॉल्ड एल्कली। एल्कली वो बेस जो वाटर में इजी वे में डिसॉल्व हो जाए, दैट इज कॉल्ड एल्कली। एंड वन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज दैट all alkali are bases but all bases are not alkali। यानी कि कुछ बेसिस होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं, बट कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। यानी कुछ अल्कली होते हैं जिनको हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अल्कली है विच डिसॉल्व इन वाटर। इट इज ऑल्सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH also dissolved in water. Calcium hydroxide also dissolved in water. ये सारे के सारे जो बेसिस हैं ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं। बट बेस सारे में आपको OH कॉमन दिखाई दे रहा है, OH 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 OH। अब देखिए कुछ OH ऐसे हैं NH4OH। ये एक ऐसा बेस है जो कि वाटर में प्रॉपर वे में डिसॉल्व नहीं होता है, दैट इज ये तो एल्कली की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसलिए द ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। तो इतना तो क्लियर है। फिर उसके बाद आते हैं कि हाउ वी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस। हाउ वी आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। हम डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स की हेल्प से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। नाउ वी विल सी अबाउट द पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कौन कौन से हैं एसिड के और कौन कौन से हैं बेस के। बेस के एग्जांपल कौन से हैं, तो एसिड का एग्जांपल पहले देख लीजिए। एसिड का एग्जांपल, कुछ एसिड के नाम देख लीजिए कौन कौन से एसिड है। तो एसिड का नाम तो ऑलरेडी आप जानते हैं, बहुत सारे एसिड के नाम आप जानते होंगे क्योंकि क्लास 9 में थोड़ा सा डिस्कस भी हुआ था। तो मान लीजिए पहले आता है H2SO4, HNO3, HCl, H2CO3, CS3COOH, COOH, HCOOH, एक्सेट्रा। ये हैं आपके डिफरेंट टाइप्स के, ये हैं आपके कॉमन एसिड जो कि केमिकल रिएक्शन में आप डेली बेसिस पे डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन करेंगे, उसमें आप ये आपको मिलेंगे। नाउ बेसिस, बेसिस का एग्जांपल क्या है, तो बेसिस का एग्जांपल है अभी मैंने लिखा था NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड AlOH, AlOH का होल थ्राइस। ये सारे के सारे आपके एक्सेट्रा आपके बेसिस के एग्जांपल हैं। एसिड का एग्जांपल H2SO4 दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, CS3COOH एसिटिक एसिड, HCOOH विच इज फॉर्मिक एसिड। तो ये सारे एसिड के एग्जांपल हैं। और बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। ये हैं आपके बेसिस और एसिड का एग्जांपल। आप कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स, अब ये देखते हैं।
अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ acids, chemical property of acids, chemical properties of acids। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम तब डिफाइन करेंगे तो टेस्ट करेंगे, फिर हम टेस्ट करेंगे पहले इंडिकेटर के हेल्प से टेस्ट करेंगे कि सॉल्यूशन जो हमको दिया गया है कि ये एसिड है या बेस है ना। सॉल्यूशन मान लीजिए सॉल्यूशन ए है या सॉल्यूशन एसिड है एंड बेस। अब आपने मान लीजिए आपने कोई इंडिकेटर चूज किया, तो पहला इंडिकेटर आपने चूज किया, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इंडिकेटर्स। आपने इंडिकेटर यहां पे लिख दिया। पहला इंडिकेटर मान लीजिए आपने ले लिया टर्मेरिक आपने इंडिकेटर लिया और आपने ऐड किया एसिड में। तो एसिड में ऐड करेंगे तो ये कलर कौन सा देगा? येलो। टर्मेरिक आपने ऐड किया किसमें? एसिड में, तो आपको कौन सा कलर मिला? येलो कलर मिला। तो यानी कि आप कंफर्म हो जाइए कि जब भी हम टर्मेरिक को एसिड में यूज करेंगे तो पूरा हमारा एसिड जो है, कलरलेस एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? येलो कलर में। उसके बाद बेस में अगर आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। यानी कि अगर आप हल्दी को चूने में मिलाते हैं या फिर अगर आप मिक्स करते हैं तो पूरा आपकी हल्दी क्या हो जाएगी? वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स क्या? इंडिकेटर आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर एंड शो द प्रेजेंस ऑफ द गिवन सोल्यूशन इज एसिड आर बेसिस। मैं यहां पे लिख रहा हूं इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस, indicators are those substances which change their color, which change their color to identify the solution। एक बार फिर से देख लीजिए। इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर, वो अपना खुद का कलर चेंज कर लेते हैं, चेंज देयर कलर टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर देते हैं। यानी कि आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि टर्मेरिक अगर एसिड में ऐड करेंगे तो ये 100% येलो कलर देगा, अगर आपने बेस में ऐड किया तो वो 100% रेड कलर देगा। तो इससे आप श्योर हो जाएंगे कि इंडिकेटर हमें हेल्प कर रहा है इन फिनोल्फ्थालीन। अगर आपने फिनोल्फ्थालीन ऐड किया किसमें? एसिड में, तो वो क्या हो जाएगा? कोई कलर नहीं देगा, रिमेन कलरलेस, वो कलरलेस होगा। अगर आपने यही फिनोल्फ्थालीन बेस में ऐड करा तो वो क्या कौन सा कलर देगा? पिंक कलर देगा। अगर आपने ब्लू लिटमस लिया, तो ये कौन सा कलर देगा? ये आपका रेड कलर देगा। ब्लू लिटमस जो है आपका रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अगर आपने इसमें बेस में ऐड करा तो नो चेंज। अगर आपने रेड लिटमस लिया
रेड लिटमस, रेड लिटमस। अगर आपने रेड लिटमस लिया तो एक कन्वर्ट, ये नो चेंज, कोई कलर नहीं देगा क्योंकि एसिड है, और ये क्या कर देगा, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। इट शुड कन्वर्ट इनटू पिंक, ये पिंक में कन्वर्ट कर देगा, और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, बेस को। अगर आपने मिथाइल ऑरेंज को एसिड में मिलाया तो ये पिंक कलर देगा, अगर आपने मिथाइल ऑरेंज को बेस में मिलाया तो ये येलो कलर देगा। So in this way, dear student, turmeric, फ्लोक्सरीन, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, मेथिल ऑरेंज, और भी इंडिकेटर होते हैं जो कि अपना ऑर्डर चेंज करते हैं। जैसे अगर आप ओनियन का एक्सट्रैक्ट लेंगे, ओनियन के एक्सट्रैक्ट में सल्फर की स्मेल आती है, उस स्मेल को डाउन करने के लिए हम थोड़ा सा नींबू ऐड करते हैं जो कि एसिडिक इन नेचर होता है। तो अगर हम किसी में भी किसी सॉल्यूशन में जो कि ऑर्डर दे रहा है, कोई स्मेल दे रहा है, स्पेशल टाइप का स्मेल है, जैसे ओनियन का स्मेल होता है, उस ओनियन के स्मेल में थोड़ा सा अगर लेमन आप ऐड करते हो तो वो ओनियन का स्मेल डाउन हो जाता है, मीन्स ओनियन का अपना स्मेल चेंज कर लेता है। तो उनको बोलते हैं जो इंडिकेटर अपना ऑर्डर चेंज करते हैं, ऑर्डर स्मेल चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर ये दोनों नेचुरल इंडिकेटर है, बाकी ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। Phenolphthalein and methyl orange, these are the synthetic indicators. Turmeric, blue litmus and red litmus, these are the natural indicators. And indicators are those substances which change their color to identify the solution. The given is acid or basis. The another part is discussed in the next video. Thank you.